Okay, up till now we have discussed about the different perquisites and we have calculated. Now small perquisites which we have discussed, a quick revision of that, and certain illustrations we are going to see. So one perquisite which we have discussed in case of the specified employees, तो specified employees के अंदर हमने एक perquisite discuss करी थी educational facility की. सो इन दैट केस वी हैव डिस्कस कि जो भी आपकी ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज है इट इज नॉट टैक्सेबल, और अगर एजुकेशन फैसिलिटी आपकी फैमिली मेंबर को दी गई है तो जितना एक्सपेंडिचर इंकर हो रहा है एम्प्लॉयर का दैट इज गोइंग टू बी द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट, और अगर ट्यूशन फी की पेमेंट या रीइंबर्समेंट है वो भी आपकी टैक्सेबल होगी. तो अगर एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है फैमिली मेंबर को एम्प्लॉयज की तो जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो टैक्सेबल हो जाएगा. अगर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय के लिए है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा. ट्यूशन फी की पेमेंट या रीइंबर्समेंट है तो वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी. और इफ द एजुकेशन फैमिली education facilities provided in any educational institute owned or maintained by the employer, then the reasonable cost of education in similar institute in the near locality is taxable up to rupees 1000 per month per child is exempt. तो जितनी भी हमारी कॉस्ट होगी से 5000 पर मंथ अगर उस पर्टिकुलर कोर्स की फी है तो 1000 पर मंथ आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा एंड 4000 पर मंथ जो है आपका टैक्सेबल हो जाएगा. दिस रूल यू हैव टू रिमेंबर, राइट? Then in that case, if there is if the particular facilities provided to any of we can say that institute which is having the arrangement with the employer, then by the reason of employment the benefit of exemption of 1000 per month is not available. It will be available only when this educational institute is owned and maintained by the employer. तो अगर आपका कहीं टाई अप है या आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपका उसमें साइन हुआ है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको 1000 की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, हियर द एग्जाम्पल इज बीइंग गिवन that X is an employee in accounts department and he attends a seminar. Per visit seminar fee is 7500 per month. तो इस केस में this is going to be exam. बाय का बेटा है 9th क्लास में और 17800 उसकी ट्यूशन फी है which is being paid or reimbursed by the employer. It is going to be taxable. And then there is another school, Star Public School, which is owned and maintained by the owner. So in that case books of accounts में अलग से आपकी मेंटेन सेपरेटली है बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो उसके अंदर ए की जो डॉटर है उसकी 5500 पर मंथ है और बी जो है उसका ब्रदर है उसकी 6000 पर मंथ है और अमाउंट चार्ज फ्रॉम हिम इज 800 पर मंथ एंड 1600 पर मंथ. तो इस केस के अंदर 5500 पर मंथ है तो इसमें से 1000 एंड 800 माइनस हो जाएगा और रिमेनिंग वैल्यू आपकी टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगी. इसके अंदर से सिर्फ 1600 पर मंथ आपका जो अमाउंट चार्ज है वो माइनस होगा. 1000 की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी चाहे ब्रदर डिपेंडेंट है, बट ओनली द कॉस्ट ऑफ परक्विजिट विल बी एग्जाम्प्ट in case of the children. So here the solution is being given. You can see that if we talk about the 7500 fee, it is not chargeable because it is for the training. Then in this particular case, whatever amount is reimbursed by the organization, it is going to be taxable. And in case of the fee of the daughter where the facility is being given, 5500 minus 1000 minus 800 charge from the employee shall be reduced and the remaining value is going to be taxable. In case of brother, only amount charged from the employee is deductible. 1000 की deduction नहीं मिलेगी और remaining amount आपका taxable हो जाएगा. So I hope educational facility is clear to all of you. Okay, now the next perquisite which we had to discuss, तो उसमें टैक्स फ्री perquisite में एक आपकी LTC और एक आपका मेडिकल फैसिलिटी, ये दो perquisites जो हैं हमें
टैक्स फ्री परक्विजिट में रूल्स के साथ डिस्कस करनी पड़ती हैं. रिमेनिंग परक्विजिट्स आर one pointer rule, so that we can discuss easily. So when we talk about the LTC, so first thing is that LTC leave travel concession, which is given, that is allowed for within the country only. When we travel and we are on leave and the travel expenditure is paid by the employer or reimbursed by the employer, then you can claim the exemption under leave travel assistance. So in this particular case, when the person is going with the family on holiday, then in that case, if the journey is performed by air, then the economy class national carrier से shortest route का amount जो है or amount spent, whichever is less, shall be exempt. So economy class airfare by the national carrier, generally we take it as an Air India only, by the shortest route from the point of origin till point of destination shall be exempt. और अगर जर्नी जो है आपकी रेल से परफॉर्म हो रही है, फर्स्ट क्लास एसी फेयर जो है शॉर्टेस्ट रूट का जो है आपका वो, या फिर अमाउंट स्पेंड जो कम होता है वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है. अगर आपके जो प्लेस ऑफ ओरिजिन जर्नी का और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन रेल या किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड नहीं है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर ओरिजिन ऑफ जर्नी आर नॉट कनेक्टेड बाय रेल, तो अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बाय रोड का एग्जिस्ट करता है, तो फर्स्ट क्लास डीलक्स फेयर एग्जाम्प्ट हो जाएगा या अमाउंट स्पेंड हो जाएगा. और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, तो फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर इज गोइंग टू बी एग्जाम्प्ट. अब व्हेन वी टॉक अबाउट द फैमिली, सो इन दिस केस दिस family and spouse and children of the employees are there. It also includes parents, brothers or sisters, those who are wholly or mainly dependent upon the employee. So however, the family does not include more than 2 surviving children of an individual born or on after 1st October 1998. In reckoning this limit of 2 children, children born out of multiple births after the first child will be treated as one child only. So in the case of children education allowance, we have also discussed कि अगर फर्स्ट बर्थ के बाद ट्विंस या ट्रिपलेट्स हो गए, तो उस केस में यू कैन क्लेम दी एग्जाम्पशन फॉर दैट. अब जो एलटीसी की एग्जाम्पशन है, उसमें आपको जो एग्जाम्पशन मिलती है वो आपके 4 साल के ब्लॉक में मिलती है. तो अभी जो प्रेजेंट ब्लॉक आपका चल रहा है, दिस इज फ्रॉम 2018 to 2021, and this particular block is considered from the calendar year January to December. तो अगर एक एम्प्लॉय आपका 2018 से 21 में एलटीसी क्लेम नहीं कर पाया, तो उसका एक नेक्स्ट ईयर तक जो है वो आपका क्लेम कर सकता है. So in that case, one extended year carryover concession is allowed if the person is not able to claim in the block of 4 years. तो नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर वो 1 साल के लास्ट एंड दिसंबर तक वो क्लेम कर सकता है. तो दिस इज अबाउट द एलटीसी. तो बहुत बार प्रैक्टिकली तो नहीं, theoretically short note on LTC can be asked. Then after that, all these things we have discussed. अब इसके बाद एक और आपका लीव ट्रेवल कंसेशन का एग्जाम्पशन आया था फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22. हमारा असेसमेंट ईयर अभी जो चल रहा है, दिस इज 21-22 ओनली, राइट. तो इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आई थी. उस ऑप्शन के अंदर क्या था कि बिकॉज दिस वाज अ पैंडेमिक एंड द पीपल वर नॉट सपोज टू ट्रेवल, तो उस सिचुएशन में आप कोई भी जो आइटम्स हैं वो आप परचेज कर सकते हो जिसपे जीएसटी 12% एंड अबव हो. तो उस केस में 3 times ऑफ द एक्सपेंडिचर फॉर विच यू आर अलाउड to spend or 36,000 per person, or 1/3 of the specified expenditure, whichever is less, that amount shall exempt. So that reimbursement or that scheme is being availed by many people.
सो इन दिस केस दिस पर्टिकुलर, अदरवाइज एलटीसी का एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जब आप ट्रेवल करते हो तो उस ट्रेवल एक्सपेंडिचर की रीइंबर्समेंट होती है एम्प्लॉयर से, और उस ट्रेवल एक्सपेंडिचर की एग्जम्पशन आपको मिलती है. बट दिस ईयर फॉर द स्पेसिफिकली असेसमेंट ईयर 21-22 the option had been given where the specified expenditure or 36,000 per person or one third of the specified expenditure, whichever is less, was allowed for exemption. So if you have got the reimbursement of that, that was exempt from tax. So एक ये छोटी सी illustration है, एक इसमें आप इसमें just have a look on this when you will be reading this particular amount, particular perquisite. Then employee's obligation met by the employer, we have already discussed. Amount payable by the employer to effect assurance of life of the employee, we have already discussed. Recognized provident fund, approved superannuation fund, group insurance scheme, स्टेट इंश्योरेंस स्कीम और फाइडेलिटी गारंटी स्कीम को छोड़ के अगर कोई भी स्कीम में आपका प्रीमियम पे हो रहा है तो दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल. Will be treated as the perquisite. Then there comes the valuation of perquisite in respect of the interest-free loan or loan at concessional rate of interest. So this we have already discussed कि कोई भी आपकी जिस भी पर्पस के लिए आपने लोन लिया है उसका आपका रेट of interest charged by SBI on the first day of the relevant previous year is to be taken. Then the concession or interest-free amount will be calculated and that particular amount is going to be treated as the perquisite. So in this particular case, there is, we have already discussed that if there is a certain amount to be returned by the employee, then it will be calculated on the basis of monthly outstanding balance. For example, there is the loan has been taken in the month of April and from January 25,000 was deducted per month. तो पहले 9 months में 8 लाख ही आपका ड्यू रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% था, तो 1/12 हमने कर दिया, 1% पर मंथ आ गया. बट जनवरी में 25,000 डिडक्ट हुआ, फेब में और मार्च में, तो उसके आउटस्टैंडिंग बैलेंस के हिसाब से this amount will be reduced by 25,000 which was deducted from the salary of the employee. So this way it is going to calculate the interest. So this will be on the basis of the monthly outstanding balance. This example just wanted to read. Yeah, this one. A purchased a Honda City 1.6 liter capacity on 1st March 2020 from a loan of rupees 8 lakh taken at the concessional rate of 9.45% per annum by his employer. As per the agreed terms, A is supposed to repay the monthly installment of rupees 25,000 starting from 1st January 21. Compute the taxable value of perquisite in respect of the concessional loan for the previous year 2021. SBI lending rate is 10.45%. So it means 9.45% पे आपको दिया है और 10.45% is the rate charged by the SBI. तो 1% जो है आपका वो taxable हो जाएगा. So this way we have taken the 1% because it's the loan has been taken in March. तो मार्च का इंटरेस्ट आपका पिछले साल में चला जाएगा, बट 1 अप्रैल 2020 का इंटरेस्ट आपका इस साल में आ जाएगा. So 8 lakh was the outstanding amount. So 1% is being charged, and because it is for the 1% is for the 12 months, so 1/12 is to be taken into account. So this way we have calculated the interest, and this interest total amount of 7875 is the taxable value of perquisite in terms of interest given on at the concessional rate to the employee, right? फिर उसके बाद एक आ जाता है आपका पॉइंट कि जो भी इंटरेस्ट फ्री लोन आपका मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दिया गया होगा स्पेसिफाइड डिसीज के लिए रूल 3A में, तो वो एग्जम्प्ट होगा. और अगर आपका टोटल लोन प्रीवियस ईयर में पैटी लोन्स और द टोटल लोन डज नॉट एक्सीड रुपीज 20,000, तो उस लोन के ऊपर भी इंटरेस्ट जो है वो आपका
टैक्स फ्री हो जाएगा। तो 2 टैक्स फ्री कंडीशन हो गया, एक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए स्पेसिफाइड डिसीज रूल 3A का, और एक अगर आपका टोटल अमाउंट जो है वो 20,000 से ज्यादा एक्सीड नहीं करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया आपका परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ मूवेबल एसेट। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर कंप्यूटर और लैपटॉप प्रोवाइड किया हुआ है तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा, और उसके अलावा जितनी भी आपके मूवेबल एसेट है वो आपका 10% पर एनम के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अंदर हमने यूज ऑफ फर्नीचर परक्विजिट में भी RFA में डिस्कस किया, और उसके अलावा भी अगर आपको कोई और मूवेबल एसेट मिली है तो उस मूवेबल एसेट पे आपका एट द रेट ऑफ 10% आपका जो है वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो जाएगी। और उस अकाउंट पे अगर कोई भी अमाउंट आप एम्प्लॉय से रिकवर करते हो या उसकी सैलरी पे डिडक्ट करते हो, सो डेफिनेटली वो रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज क्या चीज टैक्सेबल होगी, जो बेनिफिट जो हमें एम्प्लॉयर से मिला है बाय वर्च्यू ऑफ आवर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है वैल्यूएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ मूवेबल एसेट टू हिज एम्प्लॉयज एट द नॉमिनल वैल्यू। तो उस पर हमने डिस्कस किया था कि जिस भी रेट पे हमें जो भी उस वो पर्टिकुलर एसेट ट्रांसफर हुई है तो वो हमारा प्राइस क्या है, और उस डेट पे हमारा उसकी रिटन डाउन वैल्यू इन द बुक्स आपकी क्या है आफ्टर चार्जिंग दी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सो वी विल कंपेयर दैट। तो अगर आपको वो 20,000 की पर्टिकुलर एसेट मिली है और अकॉर्डिंग टू बुक्स द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर एसेट इज 27,000, तो 7,000 आपकी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो जाएगी। तो नॉर्मल वेयर टियर जो है डेप्रिसिएशन, अगर हमारा कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो उसके ऊपर 50% पर एनम बाय WDV मेथड हो जाता डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, कार पे 20% करते हैं, और एनी अदर एसेट एट द स्ट्रेट लाइन मेथड 10% के हिसाब से करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर आपका कंप्यूटर, डिजिटल डायरीज, प्रिंटर एक्सेट्रा आ जाता है, बट इट डज नॉट इंक्लूड household appliances, washing machine, microwave, mixer, hot plates, etc. So this way we calculate the value of the asset and we see how much concession is being given. So you just can see the this illustration and you can see the solution. You will get to know the process. Then there comes the medical facility. This one is I hope the last one. उसके बाद fringe benefits का है, वो quickly हम discuss कर लेंगे। जब आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है तो उस केस के अंदर अगर वो मिल रही है आपको मेडिकल अलाउंस के फॉर्म में तो वो फुली टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको वो मिली है फैसिलिटी के फॉर्म में, से इन एनी हॉस्पिटल एक्सेट्रा, तो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है तो अप्रूव्ड हॉस्पिटल में है और उसमें आपको रीइंबर्समेंट मिल रही है तो इट इज गोइंग टू बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स। ठीक है, और अगर वो आपका हॉस्पिटल ओन्ड और मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर है इट इज गोइंग टू बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स। एंड इफ इट इज हॉस्पिटल इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी है, इट इज गोइंग टू बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स। और अगर वो ट्रीटमेंट आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में मिला है लेकिन इट इज बीइंग रिकमेंडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स। कई बार होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट और वो पर्टिकुलर मशीनरी अवेलेबल नहीं होती, सो दे रेफर टू द प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। तो उस केस में उससे रिलेटेड जो भी आपका एक्सपेंडिचर रीइंबर्स होगा या जो भी आपको परक्विजिट मिली होगी वो आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी। सो हियर इट इज व्हेन वी से इट्स नॉट चार्जेबल टू टैक्स, कि जो मेडिकल फैसिलिटी है इन सारी सिचुएशंस में वो एग्जाम्प्ट हो जाती है। और अगर रूल 3A के अंदर कोई भी आपकी स्पेसिफाइड डिसीज है तो अगर वो हॉस्पिटल अप्रूव बाय चीफ कमिश्नर है तो उस केस के अंदर आपकी जो जितना भी मेडिकल ट्रीटमेंट का एक्सपेंडिचर है वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और अगर आपकी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड और रीइंबर्स बाय द एम्प्लॉयर है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एग्जाम्प्ट। And for this purpose of medical facility, family means the spouse and children of employee and the parents, brothers, sisters, those who are wholly or mainly dependent on the employee. तो ये हमें definition ध्यान में रखनी है। Then अगर आपकी facility
आपकी मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया आपको प्रोवाइड किया गया है, तो उस केस के अंदर द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रेवल प्लस कॉस्ट ऑफ स्टे, तीन चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर चाहे वो आपका एम्प्लॉय खुद हो या उसका फैमिली मेंबर जो विद इन मीनिंग ऑफ फैमिली है, तो उस केस के अंदर कोई भी जो आपका एक्सपेंडिचर है वो आपका चार्जेबल टू टैक्स होगा, तब उतने हिसाब से जो आपकी आरबीआई की परमिजिबल लिमिट होगी। तो मेडिकल ट्रीटमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग बोर्डिंग, lodging of patient and one attendant incurred by the employer outside India is not chargeable to tax in the hands of the employee if it does not exceed the amount permitted by RBI under foreign exchange regulation। तो जितना अमाउंट आपका परमिसिबल होगा वो आपका अमाउंट चार्जेबल नहीं होगा टैक्स के लिए। बट ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर जो है आपका, अगर एम्प्लॉयर आपका बियर कर रहा है for going outside India for medical purpose only, so one patient plus one attendant, ये आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर आपका एग्जाम तब होगा जब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है एडजस्टेड वो आपकी 2 लाख से कम है, एक्सक्लूडिंग दिस एक्सपेंडिचर। इस एक्सपेंडिचर को इंक्लूड किए बिना अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से कम है तो आपका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर होगा फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट borne or reimbursed by the employer is going to be exempt from tax, right? Then the perquisites, car perquisites, we have discussed in all the situations in detail. Then after that, let's move further. Yeah, that perquisite with respect to the free transport. So in that case, the perquisite shall be determined on the basis of at which employee avails such benefit to the public। जितना बाकी पब्लिक को चार्ज करते हैं, तो अगर फ्री ट्रांसपोर्ट आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है तो उस केस के अंदर आपका जितना अमाउंट दूसरे पब्लिक को चार्ज होता है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपकी सैलरी में से उसके अकाउंट पे कुछ कटा है तो वो माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर रेलवे और एयरलाइन के एम्प्लॉयज़ हैं तो उस केस के अंदर वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो हर परक्विजिट के अंदर कुछ सिचुएशन में वो टैक्सेबल होगा, कुछ सिचुएशन में सब्जेक्ट टू कंडीशन वो टैक्स फ्री होगा। सो दैट्स व्हाई आई सजेस्टेड यू कि आप टैक्स फ्री परक्विजिट का एक टेबल बना लो जिसमें आप सारी की सारी परक्विजिट सारी कैटेगरीज में से ऐड करते जाओ। When we talk about the perquisite in respect of lunch and refreshment, already discussed कि आपका नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस रिफ्रेशमेंट एक्सेट्रा वर्किंग आवर में आपका एग्जम्प्ट रहेगा। रिमोट एरिया ऑफशोर लोकेशन में फूड एक्सेट्रा प्रोवाइडेड एग्जम्प्ट रहेगा और नॉर्मल केसेस में ₹50 पर मील एग्जम्प्ट रहेगा। तो जनरली ये क्वेश्चन आपका आ जाता है, फॉर एग्जांपल जो आपको कॉस्ट ऑफ मील 120 पर मील है और 300 वर्किंग डेज के लिए आपको गिवन है, तो उस केस में 120 माइनस 50 70 रुपीज़ जो है आपका टैक्सेबल रहेगा फॉर 300 डेज, और उसमें 20 रुपीज़ पर मील रिकवर किया हुआ है तो वो 20 रुपीज़ भी आपका माइनस हो जाएगा। तो जितने भी परक्विजिट है उसमें उस अकाउंट से अगर एम्प्लॉय से कुछ चार्ज हो रहा है तो वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। और वैल्यूएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द टूरिंग accommodation etc. So this we have already discussed. Perquisite in respect of the gift voucher token we have discussed will be exempt up to ₹5,000। तो अगर 5,000 से ज़्यादा का गिफ्ट है तो 5,000 माइनस हो जाएगा और रिमेनिंग अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड वी हैव डिस्कस, ऑफिशियल पर्पस के लिए है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, अगर पर्सनल पर्पस के लिए है तो जो अमाउंट आपका रीइंबर्स हुआ है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ क्लब एक्सपेंडिचर अगेन ऑफिशियल पर्पस के लिए है तो एग्जाम, उसके अलावा अगर पर्सनल पर्पस के लिए है तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन आपका अगर वो हेल्थ क्लब फैसिलिटी सारे एम्प्लॉयज़ को यूनिफॉर्मली प्रोवाइड कर रहे हो तो वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपकी इनिशियल कोई मेंबरशिप या क्लब फी के लिए आप इनिशियली कोई अमाउंट पे करते हैं
और उस अमाउंट को पे करने के लिए वो दैट रिमेन्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट विद एनी पर्टिकुलर एम्प्लॉय, so that is also not going to be taxable. And about this sweat equity shares, we have discussed कि इस पे अंदर जिस डेट पे वो ट्रांसफ़र होता है तो उस केस के अंदर हमें मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन फाइंड आउट करनी पड़ती है. सो वेन एवर विल बी डिस्कसिंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चन वी विल ट्राई टू कवर this particular illustration as well. Then after that I think any other benefit etc जो परक्विजिट आपकी ऑलरेडी दी हुई है और उससे रिलेटेड एग्जाम्पशन नहीं दी हुई तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर आपका उसके अंदर टैक्सेबल हो जाता है. देन आफ्टर गेटिंग द बेसिक सैलरी, टैक्सेबल अलाउंसेस, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट, वी अराइव एट द ग्रॉस सैलरी. और ग्रॉस सैलरी में से हमें 16 सेक्शन के अंदर डिडक्शन देनी होती है जिसमें आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाता है तो ₹50,000 और अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर. एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड देन प्रोफेशनल टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, अगर आपका कुछ कटा है तो वो आपका उसमें से अलाउड एज डिडक्शन हो जाता है. देन टैक्स ट्रीटमेंट ऑन प्रोविडेंट फंड एंड रिमेनिंग आइटम्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. So with this our concepts of salary chapter are over and we will be covering the full-fledged practical question in the next classes, and after that we will be starting with the new section.